earlier. So ये जब इनका मीटिंग होता तो उस टाइम में some changes were thought to be brought about. उसको अमेंड करने की भी बात चल रही थी और क्या इंक्लूड करने को देख रहे थे उसमें सिक्योरिटी ट्रेनिंग का, standards of competence for senior ratings, competence standards for tanker ingress, identification. ये मालूम है क्या था सबसे पहले क्यों स्टार्ट हुआ ये? What was the need to start this? Main कारण था कि there were no standards. Every country was having its own system of training and putting them on board. तो एक कंट्री है वो अपने हिसाब से सोच रही है कि ये होना चाहिए, दूसरी कंट्री अपने हिसाब से सोच रही थी, कॉन्ट्रैक्ट्स का भी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन हो रहा था. सो देन वर हैपनिंग ऑब्वियसली. सो देन द IMA थॉट कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए ट्रेनिंग के, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए. उसके बाद किसी को एक्स्ट्रा कराना है वो एक्स्ट्रा करे, बट मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करने के लिए दिस थिंग केम. देयर वाज नथिंग. Every country was having its own system of training. So, review of alternative certification, criteria for safe manning and rest periods, ये सब आता रहा. Rest periods भी आ गए थे. Now, administration क्या करेगा? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था उसको. Administrations को, shipping companies को, training institutes. तो administration क्या करता? Amend rules and regulations regarding training and certification. ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आपका फ्लैग स्टेट्स या डीजी. शिपिंग कंपनीज का रिस्पांसिबिलिटी टू प्लान, राइट, जब छुट्टी में आप आ रहे हो. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का था टू रिवाइज अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैंडर्ड्स एंड टू मीट दोस रिक्वायरमेंट. एंड सीफेयरर्स वुड रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द लीव पीरियड. तो सिंगल फेज ट्रेनिंग रादर देन जब आप जहाज पे हो उस स्टडी को अगर उनका स्टैंडर्डाइज कर. फिर 38 जो मीटिंग है उसमें जो स्ट्रक्चर था, रिटेन द स्ट्रक्चर एंड गोल्स ऑफ द 95 एडिशन. ठीक है, नॉट टू स्केल डाउन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो 95 के थे, नॉट टू अमेंड द आर्टिकल्स ऑफ कन्वेंशन. दीज आर थिंग्स व्हिच वर address inconsistencies, outdated requirements, technological advances, उनको लेके आओ. Address requirements for effective communication. Provide for flexibility, innovation and technology. Address the special character and circumstances of short sea shipping trades and all that, offshore industry ka. Address security related issues. These were the things which they wanted to introduce into the 95 one. तो 95 का जो था पहला 78 था, STCW 78. उसके बाद फिर they brought more changes और काफी changes हुए थे in your 95 one, right, as compared to the previous one. So बहुत major changes were brought about. Of course, there were a lot of technological advances in the maritime industry, GPS, SATC, SATs वगैरह आ गए थे. Okay, so chapter 1, general provision. There are some changes made. The term appropriate certificate was removed, right? Main certificates of masters officers and GMDs as operators, उसको certificate of competency. Then certificates for other regulations including ratings, certificate of proficiency and documentary evidence on subject. Then COC shall be issued only by the administration after verification of authenticity and validity of the necessary documentary evidence. Tanker endorsements वो सिर्फ administration करेगा issue, मतलब training institutes नहीं कर सकते, it will be the administration. Recognition endorsement shall also be issued by flag states for certificate of competency, tanker endorsement of officers. Then ये changes जो आए हैं उसमें उसके बाद बता रहा हूँ. और 95 में बहुत सारे changes आए थे. Near coastal voyages जो performed हो रहे to include course of other countries also, undertaking the with the countries concerned, आपस में bilateral arrangement करके. NCV certificates issued by one country may be accepted by another country.
for near coastal voyages. इसके लिए फिर अगेन विद द नेबरिंग कंट्रीज आपके साथ अंडरटेकिंग हो या कोई बायलैटरल अरेंजमेंट हो. Incorporate near coastal limits in certificate of competencies and not intended to cover worldwide voyages. ये आपका जो near coastal voyages. Then introduction of port state control, which was not there earlier. Assessment of the ability of seafarers to maintain watchkeeping and security standards. Compromise to safety in the list. यहाँ पे क्या था? Compromise to security means कि उनको वाइड रेंजिंग पावर्स दे दी गई थी जो हमारे पोस्ट स्टेट कंट्रोल थे. सिक्योरिटी जीरो टॉलरेंस कि जहां पर भी सिक्योरिटी का वो तुमने किया तो उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं. एंड द पोस्ट स्टेट कंट्रोल ऑफिसर्स to assessment of the ability of the seafarers to maintain watchkeeping. In other words, they can question you. जैसे खासकर इनिशियली दे स्टार्टेड विद GMDSS कि अगर फॉल्स अलर्ट दे दी है GMDSS में इसमें GMDSS में SATC में या किसी में भी आपने MFD HC में तो उसको कैंसिल कैसे करोगे. So these kind of things they would ask initially. You're starting off lifeboat engines, you're starting off emergency fire pump, etc. Yeah, these were the things. और अगर उनको कुछ डाउट होता था तो और डीप जाते थे. सो काफी उनको पावर दे दी गई थी. अब तो और भी ज्यादा पावर है. Okay, national laws enforce appropriate measures to prevent fraud and unlawful practices for certificates and endorsements. बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऐसे थे जो फर्जी थे. You know, people coming on joining the ships not having the PCM का minimum requirements. आर्ट्स वाले हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट बना करके क्लास 10, 12 के forged documents for PCM और आकर के अपना मशीनरी ज्वाइन कर देते. That's quite common. May allow distance learning or e-learning. Okay. Compliance with compliance document to be sent to IMO. So once a flag state has complied with all the requirements जो STCW के हैं, अपना document they would send to the IMO for demonstration that we have agreed to the convention and we have implemented it. Now, whitelist, review of the whitelist. Now, those countries जिन्होंने ये जो amendments को कर दिया था, अपने documents submit कर दिया and they complied with the requirements of the convention, they were put in the whitelist. And those who did not comply, उनको grey list में डाल दिया. Those countries who are currently in the whitelist, but they have not complied with the requirements of 95, उनको white list से हटा के grey list में डाल दिया. अब इसमें क्या होता था? White list, grey list में होता था. Let's say India is in the grey list. Then officers from India, Indian officers would not be allowed to sail on ships of the white class flags. So let's say Singapore is white flag. They have complied with the requirements of STCW 95. And India has not complied. Grey list में है. So Indian officers would not be employed, by Singapore flag state. या जो ships हैं, Indian ships, Indian registered ships, they would not be allowed entry into the ports of the whitelist countries. या उनको allow कर दिया, but they will be subject to very strict, stringent inspections. So these are some of the disadvantages of not complying with the requirements. Then 5-yearly independent evaluation to be sent to IMO after further amendments, Halik Flag State, and QSS to include procedures for issue of medical certificates. Medical certificates also, when they were approved, तो सबके जो medical certificates थे, they are now valid for 2 years, except for those candidates who are 18 years or less, उनके लिए 1 साल का है. But अब 2 साल की validity है. But 95 से पहले उनकी validity खाली
1 साल की हो गई। इनफैक्ट 95 का भी आपका देखेंगे तो 1 ईयर की वैलिडिटी। इट्स ओनली आफ्टर 2010 के जो अमेंडमेंट्स आते तब then it became this list of approved medical practices to be made available with the DG shipping. हर एक कोर्ट में या जहाँ भी आप कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे मेडिकल जो है they have to be what you call approved by the government, that is by DG shipping administration. If a medical certificate expires during the voyage, it shall continue to remain in force till the next port where recognized medical practices are available, but not more than 3 months. Eyesight and physical ability standards for medical examinations वो prescribe की गई है. Evaluation of the recognized country, whitelist country, no endorsement or test and recognition of countries without certification of the. तो वो जो मैं व्हाइट लिस्ट की बात कर रहा था, तो व्हाइट लिस्ट में क्या होता था कि लेट्स से यू आर फ्रॉम इंडिया और इंडिया व्हाइट लिस्ट में है, तब तो ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको दूसरी कंट्री के एंडोर्समेंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे पनामा, लाइबेरिया, उनके एंडोर्समेंट्स भी मिल जाएंगे. बट इफ यू आर इन अ ग्रे लिस्ट, तो जैसा मैंने आपको फिर बताया, यू विल नॉट बी एबल टू सर्व ऑन शिप्स ऑफ व्हाइट लिस्ट कंट्रीज एंड आपका सर्टिफिकेट का एंडोर्समेंट भी नहीं होगा. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड electronic verification authenticity of certificates. Now, electronic verification. ये था कि, like I told you, there were a lot of forged documents, forged certificates being floating around in the industry. So, electronic verification. जो अब क्या करते हैं हम लोग, let's say अभी आप एग्जाम से रहे अपना, ठीक है, ARI में आपने कोर्स किया, आपके नाम सब कुछ, एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन द DG वेबसाइट. आप लोग ने भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं. नाउ लेट्स से यू आर डूइंग दिस phase 2 course here with ARI. Once you have completed your course and you have given your internal assessment और पास हो गए हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वो मिलता है, आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट. अर्लियर आप लोगों को पता है, हम लोग इशू करते थे, हर एक इंस्टीट्यूट इशू करेगा, साइन करेगा, आप साइन करोगे, आपको दे देते. बट नाउ इट इज बीइंग डन इलेक्ट्रॉनिकली. पहले नाउ these days it is being done electronically because of COVID times. Otherwise क्या करते थे हम कि let's say until last year or before that, हमने सर्टिफिकेट जनरेट किए, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया, उसका ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखिए. वो सर्टिफिकेट नंबर we would then upload on the DG website. Who will do it? ARI will do it, or training institute will do it. That Mr. So and so, CDC number so and so, passport number so and so, whatever, endorsed number so and so, he has done so and so course, completed that course and he has passed examination. ये उसका सर्टिफिकेट नंबर है. डेट भी मेंशन होगी, फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट, 15th of so and so to 14th of so and so. हमने एंटर कर दिया. उसके बाद सर्टिफिकेट आपको देते हैं, आप लोग भी एंटर करते हो अपनी तरफ से, राइट. द सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कैसे होता है, वहां पर मैच करता है कि जो हम लोगों ने आपको दिया है वही एंट्री आप भी कर रहे हो. मैच हो गया, दैट मींस योर सर्टिफिकेट इज. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कैसे होता है, वहां पर मैच करता है कि जो हम लोगों ने आपको दिया है वही एंट्री आप भी कर रहे हो. मैच हो गया, दैट मींस योर सर्टिफिकेट इज. अब अगर आप कहीं से फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट लेके आते हो, मतलब विच हैज नॉट बीन इश्यूड बाय ARI और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आप जब एंट्री करोगे वो तो सही है, आपने एंट्री कर दी, पहुंच गई, लेकिन मैच किससे करेंगे? ARI ने तो कोई इश्यू नहीं किया है, so it will reject your entry. So once you have completed your course, we update all the details of that particular course आपका
ऑनलाइन सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देते हैं, जब आप डालते हो तो वो वेरीफाई होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन और जितने भी है सबका ऐसे ही है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आपका नाम हम लोग यहाँ से अपडेट करते हैं। वंस यू कंप्लीटेड, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब हम लोग अपडेट करते हैं। ओके, ऑल सो रिवैलिडेशन ऑफ सेल फॉर 3 months इन द लास्ट 6 months बिफोर रिवैलिडेशन। अब इसमें इन्होंने तो ये रख रखा है, बट एज यू नो फ्लैग स्टेट कुछ ज्यादा कर सकता है, कम नहीं कर सकता है, राइट। हम लोग जैसे 5 साल हो गया आपका, सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है, रिवैलिडेट करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, आप लोग आएंगे, कोर्स करेंगे 10 दिन का, 5 दिन का, मास्टर्स 11 दिन का, चीफ इंजीनियर वो लोग करेंगे, और करके अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे रिवैलिडेशन। फिर अपने सीओसी को एमएमडी में जाके रिन्यू करा लिया फॉर अनदर 5 years आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड दैट। वो अब खत्म हो गया है 10 दिन का, 5th एनिवर्सरी। तो वो जो यहाँ जो अभी रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव सेल्ड फॉर एटलीस्ट 1 year इन द प्रीवियस 5 years में, आप अपना सर्टिफिकेट वो कर सकते हैं या फिर दोबारा कोर्स करते हैं। Company to have received refresher and updated training as per the convention. So वो जो 4 बेसिक कोर्सेज हैं आपके, फायर फाइटिंग, PSSR, ये सब PSCRB, वो आपको रिफ्रेश करना है और वो करना है, ठीक है। दैट थिंग यू हैव टू डू इट आफ्टर एवरी 5 years। वो जो 10 दिन का कोर्स होता था या 5 दिन का जो रिवैलिडेशन होता ना हमारा, वो खत्म हो गया। ओके, ट्रांजिशनल प्रोविजंस विल बी डिसाइडेड इन द डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन मनीला। नाउ ट्रांजिशनल प्रोविजंस मतलब ये जो पीरियड है जो आपको दिया जा रहा है ट्रांजिशन का, वो मनीला में जब कन्वेंशन होगी तो तब डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस होगी, तब वहां पर डिसाइड किया जाएगा। एंड एज यू नो कि मनीला में जो हुआ था तो 5 साल का वो दिया था, फ्रॉम 1st January 2012 to 31st December 2000, और 1st January 2017 all certificates were required to be complied to the two amendments. They had to comply, everything had to comply. लेकिन वो जो फेज था 5 साल का, वो था फ्रॉम 1st January to 31st December. So उससे पहले मतलब ये जो 5 साल का जो पीरियड है, उससे पहले अगर आपके पास STC टाइप का था, गुड इनफ, यू कुड स्टिल से। एंड ऑफ कोर्स ये 5 साल में आपका वो STCW 95 वाला एक्सपायर हो जाता और आपको आना पड़ता रिवैलिडेशन के लिए, और तब आपका रिवैलिडेशन होता एज पर STC लेवल 10 और आपको फर्स्ट नया सर्टिफिकेट मिल जाता। ओके, सो अब चेंजेस क्या आए थे, सिलेक्शन नेविगेशन को हटाने को देख रहे थे, वो मतलब जो साइट वाइट थी ना उसको खत्म कर दो। ये नॉर्वे से एक प्रपोजल आया था विच वाज रिजेक्टेड, तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए। नॉर्वे ने कहा डिलीट सिलेक्शन नेविगेशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट स्टैंडर्ड्स, तो दिस वाज रिजेक्टेड क्योंकि सैटसी हो गए, आ गए हैं सैटेलाइट्स, आ गए GPS, आ गया इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन सिस्टम। उन्होंने कहा नाउ व्हाट इज द पॉइंट टेकिंग स्टाउन साइट एंड ऑल दैट, तो दे सजेस्टेड बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसलिए अभी भी आपका वो चल रहा है, रनिंग फिक्स, स्टैगर्ड फिक्स और पता नहीं क्या क्या जो भी कराते हैं वो अभी भी चल रहा है। पेपर फ्रॉम USA, उसने कहा था कि वी कैन नॉट गारंटी द GPS की लायबिलिटी या कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट्स। सही बात है, GPS है, फेल भी हो सकता है, और फेल हो गया तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो US ने कहा था वी कैन नॉट गारंटी कि हमेशा एक्यूरेट रहेगा, हमेशा चलता रहेगा या उससे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। सो सर्टेन थिंग्स और भी कंट्रीज ने अपने अपने वो किया। नाउ एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइडेड इन द B कोड आएंगे अभी इसमें। ब्लाइंड वैलिडेशन टेक्निक्स इन ब्रिज वॉच कीपिंग, ये इंक्लूड कर दिया गया था। आई डोंट नो, पता नहीं आपके उसमें है या नहीं है, बट नाउ इन सेकंड में ये मैं पढ़ाता हूँ, ब्लाइंड उसमें ऐड कर दिया था। बट वो ब्लाइंड पैलेटेज टेक्निक होती क्या है, इट इज यू नो यू आर डूइंग नेविगेशन विदाउट रिकोर्स टू एनी आउटसाइड, तो मतलब बाहर बिल्कुल फॉग है, थिक फॉग है, यू आर नॉट सीइंग इट, तो हम वी हैव टू रिलाई ऑन द रेडार। तो वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग, इट इज ऑल अबाउट दैट। मेन सबसे जो मेन है जिसमें पैरेलल इंडेक्सिंग टेक्निक्स होती है। एनीवे, so use of ship reporting system and VTS, bridge resource management. Now bridge resource management, BRM, ये actually start हुआ है CRM से। CRM is cockpit resource management। 2 जहाज थे, एयरक्राफ्ट, एक पनाम का था, एक लैंडिंग, ये था कौन से आइलैंड है, थॉमस पे,
कनेडी आइलैंड्स। सो एक टेक ऑफ करा था, एक लैंड करा था, उस टाइम में कोलिजन हो गया इनका। सो तब से इनका लॉट पीपल डाइड इन दिस। सो उसमें कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू किया गया था और वहां से इट फिल्टर्ड डाउन इनटू द शिपिंग इंडस्ट्री एज ब्रिज रिसोर्स मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स एक दिस सिस्टम आ गया था। मरसार वाज चेंज टू आईएमसार। ये शायद मैंने जब आपको बताया होता आईएमसार कर रहा था तो मैंने कहा पहले इसको मरसार कहते थे, मर्चेंट शिप सर्च एंड रेस्क्यू मैनुअल, और अब वो चेंज हो गया आईएमसार, दोनों मिलकर करते थे। ओके, proposal for Norway to delete visual signaling Morse code, ये सब, right, again reduced to single letter, मतलब ये acceptable नहीं हुआ, तो अभी भी चल रहा है आपका Morse code. So these were the changes which various countries had presented कि ये करो नहीं करो. Proposal for Norway to include integrated bridge and navigation system, ये भी accept नहीं किया गया था उस वक्त. Leadership team working skills, ये मिसेस निधि शर्मा खन्ना जो है वो कराती है। तो इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम उन्होंने कहा अभी नहीं होगा, बट नॉट राइट नाउ। ओके, ये डेक्का लोरान रिप्लेस बाय एक्विजिशन डेक्का। अभी आप, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव वर्कड ऑन और हर्ड ऑफ डेक्का, बट दिस वाज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ पोजीशन फिक्सिंग हमारे टाइम पे, एंड बट ओनली कोस्टल वाटर्स में। इंग्लिश चैनल में खास करके बहुत यूज करते थे, डोवर स्टेट्स, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी में, बाल्टिक सी में, वहाँ बहुत यूज होता था। फिर आउटडेटेड हो गया, बट नाउ दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट बैक। लोरान सी हुआ करता था, अब लोरान ई आ रहा है, लॉन्ग रेंज है, पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम। ओके, एक्डिस चार्ट्स डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, यू नो आईएमसार हो गया, आईएमएसबीसी कोड, इसको भी चेंज करता है वही आईएमएसबीसी कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस फॉर सॉलिड बल्क कार्गोस होता था पहले, अब उसको ये बोल दिया आईएमएसबीसी कोड, इंटरनेशनल मैरीटाइम सॉलिड बल्क कार्गोस, नाम बदला है और कंटेंट्स वैसे ही है, चैप्टर्स उतने ही है, सेक्शंस उतनी है। एबीसी कार्गो को वैसे ही ग्रुप करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का कार्गो, पर थोड़े से चेंजेस इसमें भी आए हैं। लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स, ये वो कर गया है, किया है ऑलरेडी, थोड़ा सा डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। रेटिंग्स के लिए वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, 18 months sea service, 12 months sea service, approved trading record book, meeting the requirements, issue of certificate. So any डेक का जो है उसके पास अगर ये रिक्वायरमेंट्स है और वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, 18 महीने का सी सर्विस चाहिए, 12 month सर्विस फॉर अप्रूव ट्रेडिंग रिकॉर्ड मीट्स द क्राइटेरिया, उसको भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग has been replaced with combined workshop skill and 12 months on board. Months approved seagoing service, 6 months engine room का watch keeping certificate apart from seagoing service, and whatever training meeting the requirement, उसको भी certificate. Operational level plus, and in addition ये चाहिए सब कुछ, internal communication, electrical, electronic control system, automation, मतलब these are additional things which were included. Management level, सी टाइम रिक्वायरमेंट फॉर सेकंड एंड चीफ इंजीनियर रिवाइज इन लाइन विद चीफ मेजर मास्टर्स, राइट। उनका पहले सी टाइम की बात कर रहे हैं, प्रोपेलिंग टाइम पहले होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम्स एनहांस्ड हो गया आपका रेट, वहां पे पहले इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होते हैं, अब उनको इलेक्ट्रो टेक्निकल, पता नहीं क्या नाम दे रखा है, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स, ईटीओस, इलेक्ट्रो टेक्निकल ईटीओस आ गया, पहले इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होते। वॉच की भी, हाँ जी, सब पहले बत्ती होते था, उसको टेक्निकल नाम दे दिया। तो क्या करते हैं अब, बत्ती नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं? अभी बत्ती बोलते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना, अभी भी बत्ती बोलते हैं। ओके, सो ये है आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट एवं सीफेरर इंजन रूम का, उसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट है। 12 month सी सर्विस, 6 month सी सर्विस, अप्रूव ट्रेनिंग, ये सब करेगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक मेंटेन करके मीट द रिक्वायरमेंट्स, और ही कैन आल्सो, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एबल सीफेरर इंजन। New company standards for electrotechnical ratings, electrotechnical officers, ये special training for engineers, personal management, ये on power plants के भी होना चाहिए actually उनके लिए। Electrotechnical rating officer अलग है, rating अलग है, the requirements to be complied with, TUCA. So these were the major changes. Okay, carriage of trainees to be mandatory on ships, India, ये सबने अपने papers, masters should not be counted as watch keeper and ships in campus concept, India, ये इंडिया का है, मतलब हम लोग करते हैं ना शिप इन कैंपस फॉर
what do you call ट्रेनिंग के लिए फॉर कैडेट्स की आई थिंक एक ही है मेरे ख्याल से IMI है ना उनके पास है शायद शिप इन कैंपस कॉन्सेप्ट या ये इंडिया का है मतलब हम लोग करते हैं ना शिप इन कैंपस फॉर what do you call ट्रेनिंग के लिए फॉर कैडेट्स की आई थिंक एक ही है मेरे ख्याल से IMI है ना उनके पास है शायद शिप इन कैंपस कॉन्सेप्ट radio communications refresher and updated training GMDSS on board familiarization with the equipment carried changes to MRSA special shift types so हर एक के लिए अलग अलग training standards were brought about tanker endorsements higher level tank endorsements for all watchkeeping officers. Safety and security ISPS जो था तुम्हारा वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था पर्सनल सर्वाइवल फायर फाइटिंग अच्छा प्लस ये तो ओके दीज आर द फोर बेसिक वंस रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॉर बेसिक PST हो गया फायर फाइटिंग हो गया PSSR हो गया एलिमेंट्री फर्स्ट एड हटा गया या दूसरा था एवरी 5 इयर्स ये करना ही करना है आपको PSSR कोर्स थोड़ा एडवांस कर दिया था ये चीजें डाल दी गई थी इसमें then advance in areas where training can't be conducted on board survival का जैसे PSCRB हो गया advanced fire fighting every 5 years again ship security officers course everyone should be having that all not everyone but कहते हैं कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए जिनके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है एंड इसलिए कंपनी सबसे ही करवा लेती है बट यू शुड हैव एटलीस्ट 2 पीपल ऑन बोर्ड जिनके पास ये है एंड दोस हु आर ये कोर्स उन्हीं को करना है जो शिप सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज करेंगे बाकियों के पास खाली दूसरा जो है आपका कहते हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज उनके लिए सो सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स मैंडेटरी फॉर ऑल दिस थिंग विदाउट सिक्योरिटी दिस थिंग रिलेटेड ड्यूटीज क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटी DSD सब नाम है उसका हाँ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज है ना शिप सिक्योरिटी कोर्स एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज होता है एक SSO वाला होता है और बाकी जितने भी क्रू मेंबर्स है सबके पास वो होना चाहिए सर्टिफिकेट वॉच कीपिंग रेस्ट आवर्स आ गए थे 10 hours in every 24 hours और 6 घंटे ये तो मैंने कर ही लिया था आपके साथ 2 पीरियड में डिवाइड होते हैं 6 और 4 घंटे का इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पीरियड्स नॉट टू एक्सीड 14 hours 2 days in a week rest must be reduced to 6 hours ये डिलीट कर दिया था 2 days in a week और फिर वो आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आ गई थी कि 70 hours हो सकता है in a 7-day period but otherwise 77 okay drills and all do not disturb मतलब ऐसे टाइम में होनी चाहिए कि वो जो रेस्ट आवर्स को है उसको डिस्टर्ब ना करें एंड यस 70 hours का हो सकता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस मेनली सेफ्टी कि वो काम ऐसे हैं कि यू कैन नॉट लीव देम टू द नेक्स्ट डे तब 70 hours का रेस्ट alcohol limits blood alcohol content limit reduced to 0.05% in your blood and 0.25 mg per liter in your breath ठीक है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए most of the companies now following zero alcohol ओके बाकी सब आपके रेजोल्यूशंस है कॉन्फ्रेंस के टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हैं
Action dates 1st January 2012 जो है आपकी, that was the date when it was supposed to enter into force. कहाँ गया? Yes, 1st January 2012 से it entered into force और वो 5 साल का पीरियड था. आप मैंडेट 2000, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है 1st January 2017 फिर वो मैंडेटरी 1st January 2017 for existing means जो 95 वाले सर्टिफिकेट्स. 2013, like जब ये हुआ था, I had just joined the era in 2012, so that was the time when they started. So पूरा जो curriculum था वो पूरा रिवाइज किया गया था from 95 to 2010. और उसके बाद फिर रिव्यू वो हमारा ऑडिट हुआ. People from DG came on board to ensure that we were complying to the 2010 requirements. Also IMO का जो ये था STCW, तो they came and to ensure that कि हमारा सारा जो सिस्टम है is as per 2010 Manila Amendments. Curriculum भी हमने रिवाइज किया, changes हुए, not only us, other all institutes, and a report was submitted to DG Shipping. DG Shipping ने फिर IMO को बताया, okay भाई, all institutes in India we are complying with the requirements of STCW 2010. फिर IMO से लोग आए ऑडिट करने DG का और देखा कि DG was complying with the requirements of STCW 2010, मतलब flag state was complying, तो white list में रख दिया उसको. रैंडमली वो लोग एक आधे इंस्टीट्यूट को भी चेक कर लेते हैं कि देखने के लिए कि वास्तव में दे आर डूइंग इट. और डीजी तो गए जाते ही जाते हैं, तो सारे रिकॉर्ड्स डीजी में पड़े हैं. एट द सेम टाइम एक तो 3 इंस्टीट्यूट्स दे पिक अप एट रैंडम और उनको चेक करते हैं, एंड इफ दे आर एवरीथिंग इज ओके तो व्हाइट लिस्ट में आ जाता है ना. Okay guys, I don't think there's anything much more than this. मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पहले देखा था, दिस मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. शिपिंग कंपनीज ensure seafarer are able to communicate orally and effectively, ensure seafarer undertake the refresher and updated training as and when they come on leave, continuously updated rahe with all the information. Then ET rating, ET certificates whenever carried on ships उनको issue किए जा रहे हैं. Every tanker endorsement has been done and displayed. अब ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है that before placing you on board the ship, they must make sure that you have all the documents for the ship that you're joining. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये था. अपग्रेड कोर्सेज, PSSR, टैंकर फेमिलियर, कॉम्पिटेंसी कोर्सेज, सबको हम लोगों ने अपडेट किया था. प्रिपेयर कंडक्ट अपग्रेडेशन कोर्सेज फॉर एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स. कहीं कहीं पर टेस्ट भी लेना पड़ता है, जहाँ पे ये जो टेस्ट वेस्ट कराते हैं ये हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कराते. इट इज अ रिक्वायरमेंट. लेट्स से आप कोर्स कर रहे हैं, GMBSS का या EGRIS का कोर्स कर रहे हैं, so उसके बाद you have to go through the test. Seafarers have to undergo this thing for new items which are coming up. Refresher training करनी है आपको. Undertake seafarer advanced safety courses. Revalidate your certificate of competency. Ratings को अपना करना है, engineers को अलग करना है. Okay, sirs? Yes, sir. So this is your STCW 2012
78 से लेके 2010 के अमेंडमेंट्स सर इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे? यार क्वेश्चंस मैंने ये पार्ट ऑफ द लॉ ट्रूली स्पीकिंग देखा नहीं है, क्योंकि मैं जब खैर अब तो मैं फेज 2 में लॉ पढ़ाता नहीं हूँ. I used to teach only what do you call charter party is bills trading, Hague rules, Hague rules, Hamburg rules ये पढ़ाता था. एंड लॉ में चार्टर पार्टीज वगैरह हो गया, कार्गो फ्रेट श्रेट ये सब मैं करता था. बट दिस टॉपिक आई वुड नॉट नो, मैंने देखा भी नहीं. मैं अपने क्वेश्चंस बनाता था और डीजी को भेजता था. मतलब लॉ में जितने भी क्वेश्चंस होते थे तो मतलब 2-3 क्वेश्चंस मैं अपने डालता था, सौजन्य अपने डालता था, कैप्टन सरीन अपने डालते थे, तो मिल करके पेपर बनता था व्हिच वी यूज्ड टू सेंड टू डीजी शिपिंग. सो नेवर डिड सी कि इसमें क्या सकता है. बट हाँ ये हो सकता है. Changes, what all changes were brought about in the 95 amendment to STCW course, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस उसी में आए. जो स्टैंडर्ड्स कोर्स वो करना था, क्योंकि उससे पहले सब कुछ हैपहैज़र्ड हो रहा था. सो व्हाट brought about by the Manila Amendments, या रेस्ट आवर्स का आ सकता है, ये आई वुड नॉट नो एग्जैक्टली. ये या तो पास्ट पेपर्स में देखो आप, ये सौजन्या ही इज द राइट पर्सन इन दिस. बट पास्ट पेपर्स में देख लें. बट आई सजेस्ट यही होंगे व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट W2, या व्हाट चेंजेस दैट्स ब्रॉट अबाउट, यस 95 में क्या चेंजेस आए थे. फाइव की भी कोई बात नहीं करेगा वैसे. एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट द लेटेस्ट 2010 के जो अमेंडमेंट्स है उसमें व्हाट वर द मेजर चेंजेस. ठीक है सर, नोट्स तो होंगे आपके पास ना इसके. यस सर. तो वही मेजर चेंजेस देख लीजिए क्या आए हैं 2010 के. ओके गाइस, सो नोट्स वो माथुर सर के नोट्स. ओके यस, बात तो हुई थी मेरी उनसे. यस आई विल लुक करते. चलो एक बार अभी फिर बोलता हूँ मैं उनको. और ये हाँ ओके, चलो एक बार फिर बोलते हैं. हाँ जी ललित कुमार, हाय. यस सर. हाँ, डाउट्स, एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके चलो कोई बात नहीं, ऑल फाइन. अब थोड़ा सा टाइम रह गया है. अगर तरुण मेनन कहेगा कि सर छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, लेकिन तरुण मेनन तो है नहीं क्लास में, तो आप लोग अटक गए. फोन करो उसको जल्दी. ओके मीन टाइम कुछ और पूछना चाहते हैं दैट यू वांट टू नो फ्रॉम माय साइड? लॉ का तो चलो मैं जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना ही होगा. शिप हैंडलिंग में किसी में कुछ और जानना चाहते हैं फिलहाल? अभी तो रिवीजन करना पड़ेगा सर, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो. ओके कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आया सर, कुछ पूछना है? जीपीएस, डॉक्टर लॉ, ऑटो पायलट. हाँ जी चलो ठीक है. ओके फिर और कुछ नहीं है तो we can call it a day, and then you all guys have nice weekend. Be safe everyone. थैंक्स अ लॉट सर. सर माथुर सर को रिमाइंड कर दिया नोट्स के लिए सर. बस मैं सभी करता हूँ. Right after this thing I will talk to her. ऑल्सो सेफ वीकेंड. Okay guys, thanks. See you next week. थैंक यू सर.